Today we'll be continuing chapter number 6, application of derivatives, but we'll be starting with a new topic, maxima and minima. So firstly we will write what is the objective of the concept. हमारा objective क्या होने वाला है? Objective is to find out the points at which the function attains its maximum or minimum value, and also to find those maximum और मिनिमम वैल्यूज। मैं जब कभी मुझे मैक्सिमम और मिनिमम को एक साथ बोलना होता है तो मैं बोलता हूं एक्सट्रीम वैल्यूज। ओके, व्हेनेवर आई विल नीड टू कन्वे द सेम मीनिंग ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, आई वुड नॉर्मली से एक्सट्रीम वैल्यूज। एक्सट्रीम का क्या मतलब होता है? सबसे ऊपर हायर एक्सट्रीम क्या हो गया मैक्सिमा, लोअर एक्सट्रीम क्या हो गया मिनिमा। ओके, तो हमारा ऑब्जेक्टिव समझ में आता है सबको? Yes. Obviously, since the name of the chapter is derivatives, we are going to use derivatives, okay, to find out those points. So हमें क्या पता करना है? मैं फिर से दोहराता हूँ, to find out the points at which the function is attains its maximum and minimum value, मतलब the values of x, right? And then also the extreme values, इसका मतलब f of x. मैं एक example देता हूँ छोटा सा. f of x is equals to sin x, for example. So maximum value is attained at x is equals to pi by 2 and maximum value is 1. दोनों चीजें समझ में आती है? This is the point at which it is attaining the maximum value and this is the maximum value. क्या मेरी बात समझ में आती है? Yes. Yes, sir. So हमारा काम क्या होगा? To find out the points at which the function attains its maximum or minimum value and also to find out those extreme values. कोई तकलीफ किसी को भी? No, sir. Okay, now what is the way? How are we going to use the derivatives to our aid? तो हम लिखेंगे note बना लो. Any function attains its maximum or minimum value at the points at critical points. क्या हमें critical points पता है क्या होते हैं? ब्रैकेट में लिखेंगे points at which f dash x is either 0 or f dash x is equals to not defined. बात समझ में आती है क्या सबको? Yes, sir. Now understand, let's say मेरे पास एक फंक्शन है, मैंने उसका f dash x निकाला, मैंने क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लिए और क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं लेट्स से x1, x2 और x3. ठीक है, मैंने तीन क्रिटिकल पॉइंट्स मान लिए कि मान लो मेरे पास तीन क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं. नाउ तीनों ही पॉइंट्स क्रिटिकल पॉइंट्स है, तो हाउ वुड आई आइडेंटिफाई वेदर x1 इज गिविंग मी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू? x2 मुझे मैक्सिमम वैल्यू देगा या मिनिमम वैल्यू देगा? x3 मुझे मैक्सिमम वैल्यू देगा या मिनिमम वैल्यू देगा? तुम्हें मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है? Yes. कि भाई Yes, मैक्सिमम sir. वैल्यू भी तभी अटेन होती है जब क्रिटिकल पॉइंट्स पे और मिनिमम वैल्यू भी तब अटेन होती है जब क्रिटिकल पॉइंट्स पे. तो क्रिटिकल पॉइंट्स में हम ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे which point will give me maximum value and which point is going to give me negative value? Yes or no? Yes. Yes, sir. Yes, sir. चल, उसके लिए हमारे पास दो रूल्स होते हैं. पहला हम लिखेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट. फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट मैं पहले समझा देता हूं और फिर उसको लिखवाता हूं. ठीक है, ये क्यों कर रहे हैं हम? टू डिफरेंशिएट मैक्सिमास और मिनिमास फ्रॉम
critical points. We have two tests available. पहला टेस्ट obviously first derivative test. First derivative test क्या कहता है? देखो मान लो हमने क्या किया, एक नंबर लाइन बनाई. We mark our critical points onto the number line. We check the signs. For example, these are the points and this is how the signs plan out to be. Yes or no? सबको समझ में आती है? ये सब हम काम कर सकते हैं? Yes. Yes. So, Now, if it is going from positive to negative, this point is maxima. Meaning, it will give me maximum value at x1. बात समझ में आई सबको? Yes. Yes. Yes, sir. If it is going from minus to plus, this is minima. Meaning, this point will give me the minimum value of the function. Getting my point? Yes. And then, if it does not change the sign, this point is point of inflection. Meaning, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ f dash x 0 हो रहा है, लेकिन ना तो मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, ना मुझे यहाँ पे मिनिमम वैल्यू मिल रही है. सर ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ऐसे हो सकता है. मान लो एक फंक्शन ऐसा है, फिर वो ऐसा थोड़ा सा कांस्टेंट हो जाता है और फिर वो ऐसे बढ़ जाता है. तो देखो यहाँ पे f dash x 0 हो रहा है. Yes or no? Yes. बट ना तो यहाँ पे Yes, मुझे sir. कोई मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, ना मिनिमम वैल्यू मिल रही है. मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू यहाँ मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ मिलेगी. Yes or no? Yes. yes. Yes, sir. तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा? ये वाला पॉइंट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. बात समझ में आ रही है सबको? Yes. Okay. Next, moving ahead. This is my first derivative test. मेरे हिसाब से सबको समझ में आया? Yes, Yes. sir. Good. Second test is second derivative test. Second derivative test says if d2y by dx square at x is equals to x1 is negative, then x1 is maxima. हमने d2y by dx स्क्वायर निकाल लिया, f डबल डैश x निकाल लिया. फिर इसके अंदर मैं अगर x1 पुट करता हूँ और मुझे कुछ नेगेटिव मिल जाता है तो मैं क्या कहूंगा? वो मैक्सिमा है. इमेजिन मुझे अगर पॉजिटिव मिल गया तो मैं क्या कहूंगा? Minima. तो इन दिस केस x is equals to x3 पे अगर मुझे कभी पॉजिटिव वैल्यू मिल जाए, then x2 is minima, sorry x3. And the last case, और क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी? इन्फ्लेक्शन कब आएगा? So, 0. 0. बिल्कुल सही. at x is equals to x2 अगर वो 0 आ जाता है, then x2 is point of inflection. सर हमें कौन सा क्या करना पड़ेगा? हमें दोनों टेस्ट हर क्वेश्चन में अप्लाई करने पड़ते हैं क्या? हम क्या करेंगे? मैंने नॉलेज के हिसाब से ये दोनों मेथड्स तुम्हें बताए, बट मैं एज अ टीचर एंड यू विल एज अ स्टूडेंट विल फॉलो ओनली फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, क्योंकि ये हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी किया है. Yes. तो हमें ऑलरेडी कंफर्म, अभी बहुत इजी है हमारे लिए, कंफर्टेबल है हम इसके साथ. क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले, नंबर लाइन पे मार्क किए, साइंस चेक किए, खत्म काम. यस और नो? Yes. Yes, There sir. are many Yes, books yes, that sir. will say you that there are questions which you cannot do from second derivative test. ऐसा बिल्कुल नहीं है. I will make solve every single question with first derivative test. But then, sir आपने second derivative test पढ़ाया ही क्यों? For MCQs. हमें knowledge होनी चाहिए. MCQs में अगर वो कभी पूछ ले हमसे
कि d2y by dx square at x is equals to x1 नेगेटिव आ रहा है, तो x1 क्या होगा, तो मुझे पता होना चाहिए। अगर पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है तो वो मैक्सिमा है, पॉजिटिव आ रहा है तो वो मिनिमा है, और 0 आ रहा है तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया? तो हमारा अब काम क्या रहेगा? हमारा काम ये रहेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मुझे fx पता है, मैं f निकालूंगा। फर्स्ट स्टेप, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालूंगा, उन्हें नंबर लाइन पे मार्क करूंगा, साइंस चेक करूंगा, मैक्सिमम मिनिमा देखूंगा, फिर मेरे को मान लो पता चल गया x1 मैक्सिमम वैल्यू है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल x1 की वैल्यू 1 होती, मान ले यहाँ पे ये 1 है, तो मैं क्या कहता, मैक्सिमम वैल्यू विल बी इक्वल्स टू f ऑफ 1। इसके अंदर 1 पुट कर दो, मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कोई तकलीफ? No, sir. No, sir. सबको मेरे को ये लैंग्वेज में लिखवाने की जरूरत है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को, कि मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इफ इट इज चेंजिंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एट x1 देन x1 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। मैं लिखवा सकता हूँ ये लैंग्वेज, बट क्या जरूरत है हमें यहाँ पे? फिर से सुन लो, देखो, No, मूविंग sir. फ्रॉम No, sir. लेफ्ट टू राइट, सब लोग देखेंगे, मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इफ एट x1 the sign is changing from plus to negative, positive to negative, then x1 is point of maxima. Yes or no? Yes, sir. Yes. Yes, समझ sir. में आती बात? Yes. Yes, sir. If moving from left to right at x is equals to x2, it does not change sign. F dash x does not change sign, then it is a point of inflection. And if moving from left to right at x is equals to x3, we are getting f dash x changing from negative to positive, then x3 is the point of minima. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, किसी को sir. कोई भी प्रॉब्लम है? No, sir. No, sir. No, sir. Okay. Now let me take an example. Before doing any mathematical thing, let's just talk about fx is equals to x plus 1. तो मैं कहता हूँ एक स्ट्रेट लाइन है, yes or no? Yes. Like this. इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? इंफिनिटी। Infinity. और मिनिमम वैल्यू क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी। yes or no? Yes, sir. Yes, Yes. sir. ऐसा क्यों था? Because there is no restriction on x. यहाँ पे x पे कोई भी restriction नहीं था। Now let me put a restriction on x. मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में साथ में कह देता हूँ x belongs to -5 to 10 क्लोज ब्रैकेट। मैं कहता हूँ x क्या होगा? -5 से लेकर 10 तक ही बिलोंग करेगा। तो मेरा जो फंक्शन है अब ये x इज इक्वल टू -5 से x इज इक्वल टू 10 तक में ही रह जाएगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो क्या अब मेरे पास मिनिमम वैल्यू आएगी? यस, डेफिनेटली आएगी, ये मेरी मिनिमम वैल्यू है और ये मेरी मैक्सिमम वैल्यू है। यस और नो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो दो तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। एक्चुअली 3 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। fx इन ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में मैं कुछ भी नहीं कर सकता, अगर वो इंफिनिटी जा रहा है तो मैं पता नहीं कर पाऊंगा। fx इन क्लोज्ड इंटरवल्स। क्लोज्ड इंटरवल्स में यस, एंड पॉइंट्स पे मैं चेक करूंगा। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एंड वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं। बात समझ में आती है? तो ये 3 तरीके के क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं। fx इन ओपन इंटरवल, fx इन क्लोज्ड इंटरवल्स हम आज थोड़ा सा डिस्कस करने का कोशिश करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स हम एक आध दिन बाद स्टार्ट करेंगे। क्लियर है बात सबको? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Let's talk about exercise 6.5 question number 1.
Everyone, please take out your exercise 6.5. We'll start talking from question number 1. Concepts धीरे-धीरे मैं और build करते जाऊंगा. Please stay with me. सबको अभी तक comfortable feel हो रहा है इसके साथ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, now look. We will not blindly start doing questions. Okay, understand. F of x is equals to 2x minus 1 का whole square plus 3. Now these are the questions based upon your understanding of mathematics. Okay, please understand. Okay, so find the maximum and minimum values if any. अगर तुम question पढ़ोगे उसमें एक word लिखा है if any. If any क्यों लिखा है? क्योंकि अगर कोई फंक्शन है Point of inflection. नहीं, अगर कोई ऐसा फंक्शन है जिसका मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी जा रहा है तो फिर मैं उसका मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी लिखता नहीं हूँ. आ रही बात समझ में? अगर कोई फंक्शन Yes, है वो बड़े से बड़ा होता जाएगा Yes, तो फिर मैं मैक्सिमम वैल्यू बता नहीं सकता उसकी मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी है तो आई कैन नॉट फाइंड इट आउट. बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. इन दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे? दिस इज गधे का स्क्वायर प्लस 3. तो मुझे एक बात बताओ, इसका मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? इन्फिनिटी. इसमें जितनी बड़ी से बड़ी वैल्यू पुट करोगे उतने बड़े से बड़ा आउटपुट आएगा. यस Yes. और नो? Yes. तो मैं Yes, जब sir. रिपोर्ट कर रहा हूँ तो मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू का भी रिपोर्ट नहीं करूंगा क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? प्लस इन्फिनिटी, व्हिच इज नॉट एन आंसर. अब्रप्ट आंसर, नॉट डिफाइंड है. मिनिमम वैल्यू हाउएवर इज, ये मिनिमम से मिनिमम कितना हो सकता है? गधे का स्क्वायर मिनिमम से मिनिमम क्या हो सकता है? 0. Zero. Yes. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes. मिनिमम से मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 3. When 2x minus 1 is equals to 0. कोई तकलीफ किसी को? No, sir. No, sir. No, sir. क्या ये बात सबको समझ में आई? Yes. Yes, sir. चलो, Yes, ये sir. तो मैंने तुम्हें डायरेक्टली करके बता दिया. मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू अपने निकाली. लेट्स टॉक अबाउट मैथमेटिकली. क्या हम मैथमेटिकली भी इसको सेम सॉल्व कर सकते हैं क्या? देख लेते हैं. मैंने कहा fx गिवन है. सबसे पहला स्टेप क्या होगा? f dash x निकाला जाए. तो गधे की पावर 2 into गधा into गधे का डिफरेंशिएशन प्लस 3 का डिफरेंशिएशन 0. सो 4 into 2x minus 1. क्रिटिकल पॉइंट क्या है इसका? x is equals to half है क्या? Yes, sir. Yes, sir. हाफ से वैल्यू 0 पुट करके देखो, इसके अंदर नेगेटिव आ रहा है फिर पॉजिटिव आ रहा है. सो हाफ इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा. यस और नो? Yes, sir. किसी को कोई भी प्रॉब्लम है क्या? No, sir. No, sir. तो इसका कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है. ऐसा Yes, कोई पॉइंट नहीं है जहाँ पे ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है. लेकिन मिनिमम वैल्यू कहाँ होती है? हाफ पे. तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी इस फंक्शन की? f of half, that is 2 into half minus 1 का whole square plus 3, that is 0 plus 3, that is 3. yes or no? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. तो अगर ये एक कोई 1 मार्क का क्वेश्चन है तो मैं ये वाला मेथड प्रेफर करूंगा या ये वाला मेथड प्रेफर करूंगा? मैं ब्लू वाला मेथड प्रेफर करूंगा any day of the week because I know my mathematics. We are math students. But then there are a few students जिनको लगता है कि हमें मैथमेटिकली ही चलना है, हमें दिमाग लगाना ही नहीं है बिल्कुल भी, तो फिर तुम ये वाला रेड वाला मेथड भी कर सकते हो. बट मैं कुछ क्वेश्चंस ब्लू वाले तरीके से ही बताऊंगा बिकॉज आई एम अ बिग फैन ऑफ मैथमेटिक्स. क्लियर है बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. जैसे सेकंड क्वेश्चन आया, मैं बात करता हूँ इसके सेकंड पार्ट की. 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2. सर आप तो बहुत बड़े फैन थे मैथ्स के, अब बताओ इसको क्या करने रहा? तो मैं कहूंगा नहीं यार, इसको तो f dash x से निकाल लो, वो आसान रहेगा हमारे लिए. ठीक है क्या? वो तो 3 minus 1 लेके Yes. 3 कॉमन लेके फिर y क्यों चाहिए? कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा? उसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना पड़ेगा. चलो मैं वो भी बता देता हूँ, पहले f dash x वाला निकाल लेते हैं फटाफट. तो मैंने कहा f dash x is 18x plus 12. So the critical point is minus का 2/3. Yes or no? Yes. Yes, sir. Positive, negative. So this is a point of minima. So minimum value क्या आएगी?
-2/3. f of -2/3. क्लियर है क्या बात? Yes, sir. ये तुम आसानी से निकाल पाओगे। बट यस, जो निखिल कह रहा है, मान लो कि सर हमें अपना वाला तरीका अप्लाई करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो है, अपना वाला तरीका अप्लाई करते थोड़ी मैथ से लगाई जाए इसमें। तो मैं कहता हूँ अपन ने कंप्लीटिंग द स्क्वायर तो सीखा ही है, इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगा दो। तो देखो कंप्लीटिंग द स्क्वायर कैसे लगाते हैं। सबसे पहले 9 कॉमन लिया, x² + 12/9 x + 2/9। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. फिर हम x² का x लिखते हैं, फिर ये 4/3 लिखा है, जो भी नंबर यहाँ लिखा होता है उसका हाफ करते हैं। यस और नो? Yes, sir. फिर इसका स्क्वायर माइनस जो भी नंबर यहाँ लिखा है उसका स्क्वायर माइनस और प्लस 2/9 ऑलरेडी। तो 9 इंटू x + 2/3 का होल स्क्वायर माइनस 4/9 + 2/9। देखो माइनस का 2/9 इंटू 9 माइनस का 2। Yes. यस और नो? Yes, sir. नाउ इसका मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू क्या जाएगा? इन्फिनिटी। इसको कितना भी बड़ा कर दो। और मिनिमम से मिनिमम वैल्यू क्या जाएगा? -2। यस और नो? Yes. क्या ये बात समझ में आती है सबको? Yes, sir. -2/3 होगा. क्यों? ये 0 हो गया तो 0 - 2 -2। Yes. लेकिन सर x को 0 रखा. x को 0 नहीं रख रहे, वही मैं कह रहा हूँ तेरे को। x + 2/3 को 0 रखना है। Yes. तो x की वैल्यू -2/3 आएगी ना। और तुम मैथ ऊपर वाले क्वेश्चन में भी f of -2/3 निकाल के देखोगे, तुम्हें -2 ही मिलेगा। Yes. आई बात समझ में? किसी को कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? मैं आई एम नॉट हियर टू कंफ्यूज यू गाइस, ओके? प्लीज अंडरस्टैंड।